यू डिज़ाइन एंड फिल्टर दैट यहाँ पर बनारस में आई गेस ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम लोग इतना फ्रूटफुल डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी थ्योरी बेस्ड डिस्कशन तो होता ही रहता है और भी सेमिनार्स होते हैं, फोरम्स होते हैं। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि कोमल ने मुझे एक हफ्ते से बहुत प्रेशर दिया है कि फटाफट 40 मिनट्स में आपको रैप अप करना है, तो लेट्स स्टार्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन. And the first question is from Ritesh sir, because as you all know, कि Ritesh sir अभी last हमें मतलब हमें तो नहीं पता कब से, बट जैसे हम देख रहे हैं 5-6 साल से सर ने बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं. हेरिटेज बिल्डिंग जैसे ब्रिजरामा पैलेस आप सब लोग जानते हैं, तो सर का ही वो प्रोजेक्ट है जो सर ने उसे रेनोवेट किया है और ऐसे बहुत लग्जरी अच्छे होटल में कन्वर्ट किया है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, for those who have lived or worked in a heritage building in Banaras, what was the first problem you tried to fix? And in hindsight, do you think you should have left it untouched? तो प्रैक्टिस तो सब हम लोग कर ही रहे हैं, मगर होता क्या, दिक्कतें क्या आ रही हैं सर जब आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं? Thank you, Parthini, for the recognition. So, as the question arises, that what is the problem? How do you fix while designing a project in the heritage building? So, if somebody is living and who has designed the heritage building, the major problem when we start the project as a consultant, it arrives at starting with the walls. Like we have to, what we do initially, the walls in the heritage city are of lime plaster. So what we try to do, we peel off the plaster and we put on the cement plaster and we paint it and we do the putty on it. So what I think, we are actually destroying the structure of the wall, because the building is like a breathe, as we breathe, like a human body breathe, it breathes. So when we are doing a putty on the wall, so it is like it cannot breathe, and later it deteriorates. So later we regret that it should not have been done. Secondly, we are modern, putting everything modern in the heritage buildings. We are putting the modern windows instead of the all jalis and the jharokas, because the main reason of this, because we are setting up what we say, with like a modern mindset. We are not what I can say is, it's the heritage building should be understood. It should not, we cannot superimpose the modernism on it. We have to understand the material, how the material is behaving, how the building is behaving. Like when we go to the old city, there are the courtyard planning, the small openings and the thicker walls. So there was a reason of putting this. But what we are doing, we are vanishing all these and superimposing the new element, so it is not a climate responsive design, it is basically a product based design. So as I said, first is the walls, what we do with the walls. Second is the openings. Third is regarding the flooring. In the old buildings we find the stone flooring, brick flooring, but what we do, we remove it, we put the vitrified tiles. So what we should do, while designing this type of building, we rather to replace it, we have to repair it. So our approach should be to repair it rather to replace it. We have to see the building, the element which you are putting, something new, it should integrate with the harmony of the architecture, what actually it demands. So what we try to, it is every time we see the architecture, we get impressed from somewhere else and we put it here without knowing the actual identity of the material. The material should be understood. It should be clearly what will be the impact of this material on the building. It's just not putting everything. And we always emphasize on the aesthetic sense of the building, but I think we should understand how the buildings behave, how the light and movement is going, and accordingly we have to design. So these type of problem we faces, and later we regret that we should have not done this. So better to understand it and design it in such a way so that it should comprehend
we have to do comprehend, it should comprehend with the architecture, existing architecture to the new architecture. So rather than replacement, we should integrate the things rather to replace. So this type of problem we find in this type of designing this type of buildings. वन थिंग आई वांट टू ऐड, जो अपने मन से मैंने ऐड कर रही हूँ सर, क्योंकि आपने किया है ऐसे प्रोजेक्ट्स, तो एक ऐसा एग्जांपल आप बताइए कि जब हम लोग वहाँ आपने साइट विजिट की हो और आपने उस समय वो ध्यान नहीं दिया, बट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन या तो प्रोजेक्ट जब फिनिश हो गया तब आपको याद आया कि मैंने इस माइनर चीज़ पे ध्यान नहीं दिए और वो बाद में जाके बहुत मेजर हो गया। फॉर एग्जाम्पल आपके मन में होंगे। द फर्स्ट पॉइंट विच आई कोट की, जैसे कि मैंने वॉल्स के बारे में बताया, तो ये सब गलतियाँ करके ही सीखते हैं। लाइक वी हैव डिजाइन्ड अ बैंक्वेट हॉल in the Varanasi. So it was a 100-year-old building and the wall thickness was 3 feet. So when we were thinking of replacing any openings or we are doing some alterations in the opening, so it was a very challenging for us, and putting into many, like suppose we have to integrate lift into it, we have to do like integrate the services part, because services part is the major challenge which we find in the heritage building. While designing the MEPs, we have to see how the drainage system is going to be, how the air conditioning is going to be. So these all things, और जैसा कि हम लोग ये सब गलतियाँ करके ही सीखते हैं। जैसा कि अगर जैसे क्लास्टर वाली मैंने बात बताई, तो लेटर भी रिकॉग्नाइज की, क्योंकि जब बिल्डिंग में बाद में प्रॉब्लम आई तो ये समझ आया कि ये नहीं होना चाहिए था। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स बेटर टू अंडरस्टैंड रादर टू रेप्लिकेट। Okay, thank you so much, sir. Next question I'm asking from architect Aji Jain, sir. He's one of the senior most architect of Varanasi, as you all know, and also a part of Kashi Vishwanath corridor. So the question is, we often talk about preserving Banaras, but who are we really preserving it for? The resident, the tourist, or architect? हम लोग बोल तो रहे हैं आर्किटेक्ट कि हाँ हम बचा रहे हैं, बट क्या वो हम अपने लिए बचा भी रहे हैं या नहीं, और क्या वो एक टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा है? एज एन आर्किटेक्ट आप उसे कर रहे हैं या फिर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक बनारसी हैं? थैंक्स। पहले तो मैं कोमल का, उनकी टीम का स्वागत करता हूँ। उन्होंने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी है कि आज यहाँ बनारस के काफ़ी सीनियर आर्किटेक्ट्स जरा बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया। आर्किटेक्ट का बहुत वाइड रोल होता है, उसको सब करना है, प्रिजर्व भी करना है, मॉडर्न रिक्वायरमेंट को भी समझना है, और बिजनेस टूरिज्म के रिक्वायरमेंट जो आपने बोला उसको भी समझना है। वी हैव टू कंपोज ऑल द थिंग्स, दैट इज व्हाट द आर्किटेक्ट डज। आर्किटेक्ट का काम ही यही है। आज अगर हमारे शहर में टूरिज्म हो रहा है, क्यों हो रहा है? विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बना, प्रधानमंत्री जी ने उसको बहुत प्रोत्साहित किया, इतना प्रमोट हो गया कि आज करोड़ों लोग आ रहे हैं। क्योंकि मैं इसके आई वॉज एट द हेल्म ऑफ द विश्वनाथ मंदिर, रादर आई फील गुड टू से दैट दिस इनिशिएटिव वॉज प्रपोज्ड बाय मी इन 2010, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर। एवरीबडी, ऑल माई फ्रेंड्स नो। सो मुझे ये बात इसलिए अच्छे से अनुभव है कि अभी जब ये बात हो रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ये गलियाँ समाप्त हो जाएंगी तो क्या होगा। एक बात आती थी कि हमें तो टूरिज्म भी चाहिए, पिलग्रिम्स भी चाहिए, मतलब अपने धर्म की रक्षा भी चाहिए, और टूरिस्ट भी चाहिए। वो हमारे जो टूरिस्ट होते हैं, टूरिस्ट मतलब इंडियन टूरिस्ट जो आते हैं धर्म की भावना लेकर के बनारस आते हैं दर्शन करने के लिए, तो उनके लिए भी मुझे ध्यान करना ही पड़ेगा। तो हमें आर्किटेक्ट के रूप में सब सोचना पड़ा, मतलब परचेज कैसे होंगे, मकान इसके बारे में प्लान करना पड़ा। जो कॉरिडोर खरीदा गया है मकान। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, तो एक क्वेश्चन बता, जहाँ तक हमें पता है कि ये जो पूरा डिजाइन था कॉरिडोर का वो तो बाहर से आया था, तो हमें आपसे ये जानना है क्या एज एन आर्किटेक्ट, लोकल आर्किटेक्ट, आपका ये रोल या पावर था कि आप उस डिजाइन में मॉडिफिकेशन कर सकें? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। मैंने इसकी परिकल्पना 2011 में की थी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ था, उसमें मैंने पूरी डिज़ाइन प्रस्तुत की थी। उस वक्त में हम लोगों ने 3.5 एकड़ के करीब की लैंड में प्रपोजल दिया था। उस वक्त में ना तो मोदी जी थे ना ही योगी जी थे, और ये पूरे शहर को मालूम था कि जो मैंने प्रपोजल दिया था। उस प्रपोजल का बेसिक कंसेप्ट था कि जो गंगा जी का बैक वाटर है उसको बैक वाटर करके हम यहाँ तक लाएंगे, और इतने सारी बिल्डिंग नहीं बनानी थी जो वर्तमान में बन गई। अब वो कमेंट इसलिए मैं नहीं करना चाहता हूँ
कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिमल पटेल जी को इंगेज किया था एंड दैट प्लान इज एग्जीक्यूटेड. सो देयर वर लॉट ऑफ थिंग्स. एवरी आर्किटेक्ट हैज गॉट डिफरेंट ओपिनियन. हमारे दिमाग में तो था सिर्फ पूजा पाठ की व्यवस्था होनी चाहिए, माँ गंगा का दर्शन विश्वनाथ मंदिर से गंगा का दर्शन हो, गंगा जी से विश्वनाथ जी का दर्शन हो. वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो गए हैं. तो जो आप बोलना चाह रहे हैं कि आर्किटेक्ट दूसरे हो गए, बट मैं तो यही कहूँगा कि मेरे को इस बात की संतुष्टि रहती है कि आज बनारस में इतने टूरिस्ट, इतने पिलग्रिम्स आ रहे हैं, भगवान की आराधना पूजा हो रही है. स्वरूप का परिवर्तन तो लगातार प्रक्रिया है, वो अपने आप में बड़ी लंबी स्टोरी है. हाउ दिस होल प्रोजेक्ट टुक द शेप. तो अगर इस प्रोजेक्ट का सर कंक्लूजन देखें तो वो तो एक टूरिज्म पॉइंट से ही ये हुआ, प्रिजर्व नहीं हो पाया. आप किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, क्या हम वो प्रिजर्व कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसमें आप पार्ट रहे हो और आपका रोल भी रहा हो एज एन आर्किटेक्ट एंड एज अ रेसिडेंट उसको प्रिजर्व करने का, हेरिटेज का और वर्नाकुलर थिंग का? देखिए, उस विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में जितने भी मकान थे वो तो मान लो डिमोलिश करके इस स्पेस को इंक्लूड किया गया, मगर जो मंदिर थे पुराने, आपको ताज्जुब होगा कि उसमें ऐसे ऐसे मंदिर थे जिनमें लोग पूरा घर के अंदर वो पूरा इनवलप के अंदर चला गया, वहीं बाथरूम बना दिया था, मंदिर के चौखट के पास में किचन बना दिया था. ये आवश्यकता पड़ी, पर देश गुलामी के जड़ों में बना हुआ था कि जो जैसे रहना चाहता था. सर मेरा वही क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम कॉरिडोर ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो आपने प्रिजर्व किया हो? और आपने पहला जो प्रोजेक्ट बोला था हमारे इसको बोला बिजरमा पहले. जी जी सर. I was, he knows it, I was first invited from the owner to see the project, to construct the project. चूँकि मेरा बिल्ड भी करते हैं हम लोग, तो उसमें मेरे को उस प्रोजेक्ट की पूरी A to Z स्टोरी मेरे सामने हुई और उसमें ये भी मेरे साथ में थे. तो उसमें जो मिनरेट था ऊपर में, वो एक मिनरेट तो प्रोजेक्ट प्रोटेक्टेड था, दूसरा पूरा गिर गया. तो उसकी कई सैकड़ों फोटो निकाल कर करके उसी क्वालिटी के, उसी कलर के पत्थर को खोज कर करके उसी डिज़ाइन में हम लोगों ने किया. इवन आप जो कोर्स के अंदर में अंदर की तरफ में कोर्टयार्ड था, कोर्टयार्ड की जाली थी, पिलर्स थे, आर्चेस थे, उन सब को मेंटेन किया गया. इवन जो पुराने निषेध थे, निषेध के अंदर जो शेप बने थे, उन सब का फोटो खींचने के बाद अगर उसको हम लोगों ने चेंज किया तो उसको मेंटेन किया. एक बात रितेश जो आपको बता रहा था, उसकी जो बाहरी दीवार है आप जाके देखो, पूरा ऐसी बाहर की दीवार रखी हुई है. क्योंकि मैं एग्जीक्यूटर नहीं था, तो जब मैं अंदर की तरफ से दीवार बदल रहा था तो लखौरी की छोटी छोटी ईंटें हुआ करती, तो डरते थे लोग कि कैसे निकालेंगे. तो हम उसमें 2 फुट की टुकड़े में वर्टिकली पूरा का पूरा दीवार निकाल करके उसको ब्रिकवर्क के साथ भरते थे, फिर 2 फुट का गैप देते, दूसरा निकालते थे, फिर बीच में आकर निकालते थे. तो इट हैज़ बीन वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस. अब उसमें मैं एक्सपीरियंस की बात, प्रिजर्वेशन की बात करें, अब वो लकड़ी की धरन हुआ करती थी पहले ज़माने में, स्टोन के स्लैब्स लगते थे. अब वो लकड़ी की धरन को पहले वाले जो लोग थे, वो लकड़ी की धरन सड़ गई तो कहीं पर लकड़ी लगी रहती थी, कहीं पर गडर लगा रखा थी. और जो लकड़ी लगी हुई थी उसके जो डिज़ाइंस थे, हम लोगों ने उसको पुराने को उसको फोटो खींच करके जितने गडर्स थे उनको फिर से गडर को लगाना पड़ा बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ. और उसके बाद हम लोग उसको लकड़ी की क्लैडिंग करके उसी शेप में ले गए. क्या वही रीते से, मतलब यू कैन से इवन उसके जो पुराने पिलर थे, पानी के बरसात में उनके पिलर के बॉटम लेवल पर सब पत्थर गल गए थे. उसकी जो डिज़ाइन थी, आकृतियाँ थी, गल गई थी. तो कुछ जगह तो पूरा हम लोग को काट करके रिप्लेसमेंट करना पड़ा, कुछ में हम लोग ने उसको रिक्रिएट किया स्टोन और रेजिन्स के माध्यम से मिक्स करके. तो इट हैव बीन अ वेरी चैलेंजिंग. मतलब मैं ये कह सकता हूँ उसकी जो आपने बात कही थी आर्किटेक्चर, उसके आर्किटेक्चर को फील किया गया. व्हाट वाज द बेसिक कोर थॉट जो आज से 200 साल पहले जो उसके डिज़ाइनर्स थे, उस वक्त की जो प्रैक्टिस रही होगी, उस वक्त की प्रैक्टिस का मतलब उस वक्त ना तो एयर कंडीशन तो नहीं हुआ करते थे, उस वक्त में नेचुरल कूलिंग की बात होती थी. जो 3 फुट दीवार की बात इसने बताई, तो जब वो दीवार इसलिए बताते थे मोटी रहेगी तो आपको कूलिंग मिलेगी. छतें बहुत मोटी हुआ करती थी, फिर गटर लगाया या लकड़ी के धरन लिए, फिर स्टोन लगाया, फिर से मिट्टी भरी, मिट्टी के ऊपर जा करके चूने की बरी से करते थे. ये तो सर प्रोसेस की बात हो गई. स्टिक टू द क्वेश्चन, एक पर्सनल सवाल रितेश सर से और आपसे भी, कि अगर हम ये बोले कि आपने जो प्रिजर्व किया तो वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए था क्योंकि आप एक बनारसी और एक बनारस की बिल्डिंग को प्रिजर्व करना चाहते हैं, या उसका मोर टूवर्ड प्रोफेशन था क्योंकि मैं आर्किटेक्ट हूँ तो आर्किटेक्ट का रोल निभाते हुए आपने उसको प्रिजर्व किया? मतलब वो तो पर्सनल हुआ. मेरा ये था कि आपको जब प्रिजर्व करने के लिए बोला गया तो आपको क्या लगा कि मैं यहाँ रेसिडेंट हूँ इसलिए इसको प्रिजर्व करूँगा, या मैं आर्किटेक्ट हूँ सो दैट्स माई रोल?
So emotionally और as a professionally वो आपकी healing है. देखो ऐसा है कि कोई भी आर्किटेक्चर होता है, मैं तो मानता हूँ कि उसका यूनिवर्सल कैरेक्टर भी होता है। उस वक्त के जो स्टोन आर्किटेक्चर थे वो सिर्फ बनारस का नहीं था, वो दिल्ली राजस्थान के भी थे, सभी लोग थे। तो मेरा तो एज ए आर्किटेक्ट रोल हुआ कि मैं उसमें क्या अपने थॉट्स डालता हूँ, कैसे उसको प्रिजर्व कराता हूँ। तो मेरा थॉट यही है कि नहीं, उसको हमें एज ए आर्किटेक्ट देखना था। बिल्कुल जैन सर का कहना सही है कि जब हम लोग किसी भी तरह की हेरिटेज बिल्डिंग या इस तरह के रेस्टोरेशन करते हैं तो हम लोग को बेसिकली उसकी एग्जिस्टिंग हिस्ट्री को जानना ज़रूरी है, उसके प्रपोर्शन जो डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं, तो कि हम लोग को वहाँ पे इट इज़ नॉट लाइक अ मॉडर्न आर्किटेक्चर कि हम लोगों ने कुछ भी उसमें क्रिएट किया। हमको उसमें बहुत सारी चीज़ें जो उसके अंदर इंटीग्रेट हो सकती हैं, चाहे वो आर्चेज हो, चाहे वो कॉलम हो, एनीथिंग। तो वो सब चीज़ों को हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इट शुड अमेलगमेट विद द एग्जिस्टिंग आर्किटेक्चर। इट शुड नॉट लुक लाइक कि एकदम से कुछ ऑड वन आउट क्या हो गया। So definitely as an architect we have to see aesthetic point of view से and services तो definitely अलग है ही, लेकिन aesthetic से हम लोग को इसको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आर्किटेक्चर हेरिटेज बिल्डिंग्स में हमको एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को कॉम्प्लीमेंट करने वाले एलिमेंट को ही मतलब उसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। ओके सर, थैंक यू। तो अभी जो हम लोगों ने काफ़ी हेरिटेज और हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में बात कर लिया, जो कि बहुत कम हो रहा है बनारस में, और क्लाइंट की डिमांड भी शायद इतनी नहीं होती जब हम न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम आर्किटेक्ट धीरज सर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मॉडर्न बिल्डिंग्स आप जो देख रहे हैं फ्रॉम लास्ट डिकेड बनारस में, उसके सारे मॉडर्न फसाड सर के द्वारा ही डिजाइंड है। सो द सर फॉर यू द क्वेश्चन इज, इफ यू हैव डिजाइंड कंटेम्प्रेरी स्पेसेस इन बनारस, what is one thing heritage building do better than anything you have created? नहीं पायशुली, थैंक यू। आई डोंट थिंक तो कि हेरिटेज इज जस्ट अ बिल्डिंग। हेरिटेज सिर्फ हम अपनी बिल्डिंग से नहीं कह सकते, स्पेशली बनारस को देखते हुए। इन माय ओपिनियन जैसे हम राजस्थान को करते हैं या मैं दिल्ली को करता हूँ, तो दिल्ली में एक सेपरेट टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है, दैट इज द मुगल आर्किटेक्चर। आप जो हेरिटेज देखते हैं वो मुगल आर्किटेक्चर का पार्ट है। आप राजस्थान जाते हैं, वहाँ एक राजपूतान आर्किटेक्चर का पार्टिसिपेट है। बट जब बनारस के आप हेरिटेज को देखते हैं ना, वहाँ पे मिक्स ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर है। लाइक वी हैव 80 घाट्स, ठीक, हर घाट में एक डिफरेंट आर्किटेक्चर है। आर्किटेक्चर नहीं कि मैं मध्य प्रदेश से आया तो मैंने मध्य प्रदेश का आर्किटेक्चर लेकर आया, मैं राजस्थान से आया तो मैं राजस्थान का आर्किटेक्चर लेकर आया, मैं गुजरात से आया तो मैं गुजरात का आर्किटेक्चर लेकर आया। बट ओनली वन थिंग इज कॉमन, लाइक इज आर मटीरियल। They all building is done in one building, like a chunar stone, lime plastered and normal teak wood. इसके अलावा बनारस का कोई ऐसा हेरिटेज आर्किटेक्चर क्या कि कोई इज अ बनारस आर्किटेक्चर हेरिटेज आर्किटेक्चर? आई डोंट थिंक सो। कि इट माय ओपिनियन, मे बी आई एम डिफर फ्रॉम अदर्स, बट इट इज माय ओपिनियन कि इट इज नॉट अ फिक्स आर्किटेक्चर, इट इज अ आर्किटेक्चर बिल्डिंग और वी हैव टू प्रिजर्व इट। लाइक in my opinion, if I design some building in facing Ganga, so मैं वो नैरो विंडोज नहीं डिज़ाइन करूँगा। फाइन डिज़ाइनिंग अ बिल्डिंग, मैं बड़ी विंडो डिज़ाइन करूँगा जिससे मुझे व्यू मिल सके। वो उनका ओपिनियन हो सकता है कि आर्किटेक्चर में उस समय लाइट्स नहीं होती थी, विंड डायरेक्शन बहुत तेज होते थे, बिकॉज यहाँ पे जितनी बिल्डिंग्स बनी है सब ईस्ट फेसिंग बनी है। बिकॉज हमारा ओरिएंटेशन ऑफ हमारा जो लोकेशन है, टोपोग्राफी है, वो ऐसी है कि वो टूवर्ड्स ऑल फेसिंग टूवर्ड्स द गंगा। तो हमने सारा ईस्ट फेसिंग बनाया है मॉर्निंग सनराइज लेने के लिए, मॉर्निंग लाइट्स लेने के लिए। और जनरली आप अगर बिल्डिंग को देखेंगे टूवर्ड वेस्ट साइड, वो बहुत नैरोज होते थे, लेन्स होती थी। डेफिनेटली दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर वेरी इंटेलिजेंटली प्लान। मैं व्हेन आई एम एन आर्किटेक्चर स्टूडेंट, तो मैंने चार्ल्स कोरिया का एक वर्कशॉप अटेंड किया था एंड ही कोटेड वाराणसी कि मैंने इससे अच्छा मास्टर प्लान नहीं देखा है। मास्टर प्लान बनाने में सिर्फ दो चीज़ बोली है, एक वाराणसी हिंदू यूनिवर्सिटी and second is Srireka, because the two thing is planned in Varanasi, other is unplanned. So उनका ये कहना था कि I visited and I spent my 2 months or 3 months in Varanasi streets, और आई एम सरप्राइज कि कोई वाराणसी की स्ट्रीट्स ना वो एंड नहीं होती, वो कहीं ना कहीं वो निकलती है। भले वो एक आदमी की निकले, एक जानवर की निकले, लेकिन वो निकल जाती है। सो मैं स्टूडेंट था, मुझे खुद के बारे में बनारस के बारे में नहीं पता था, बट नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी और मुझे 17-18 साल हो गए, तो आई पर्सनली आई फील इट ये। एंड इट इज़ नॉट अबाउट कि आई एम डूइंग अ मॉडर्न आर्किटेक्चर, इट इज़ डिमांड नीड। वी आर कमर्शियल आर्किटेक्ट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, वी आर नॉट सच एन आर्किटेक्ट्स कि हम सिर्फ अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए काम करते हैं।
वी आर अ कमर्शियल आर्किटेक्ट, तो हम जो अपनी बिल्डिंग्स प्लान करते हैं वो आज के मॉडर्न देखते हुए प्लान करते हैं, मॉडर्न चीज़ों को देखते हुए प्लान करते हैं. अभी आई एम डिज़ाइनिंग वन प्रोजेक्ट, इट इज़ अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स. Because I hate Western products, you know, saying. I'm using complete facade and I convince my client that I'm doing into only a brick, plaster and the glass, nothing else. मतलब कोई glass facade नहीं है, कोई ACP नहीं है, कुछ भी नहीं है. This is only a vernacular project and वो सारे वाराणसी products use हो, because we are going for a green building certification. तो उसमें बहुत सारी चीज़ें दिखती है कि हम बहुत सामान नहीं ला रहे हैं, हम कार्बन जनरेट नहीं कर रहे हैं और चीज़ों को नहीं कर रहे हैं. तो पर्सनली आई फील कि ठीक है, हेरिटेज इज़ इम्पॉर्टेंट, मॉडर्न बिल्डिंग इज इम्पॉर्टेंट है. दे आर लकी कि इनको इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला प्रिजर्व करने को. आई एम नॉट कि मुझे कंपेयर के डायरेक्ट प्रोजेक्ट नहीं मिला, नहीं डेफिनेटली अगर मुझे मिलेगा भी ना तो आई बस मेरा फील ये कि आई मैं उसके एसेंस को नहीं मारूंगा, लेकिन डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस करूंगा मॉडर्निज्म के अकॉर्डिंग. दिस माई थॉट. सो द क्वेश्चन है सर कि आप जब मॉडर्न बिल्डिंग्स कर रहे हैं और हेरिटेज बिल्डिंग का भी आपको पता ही है, तो क्या एक प्रोस बता सकते हैं आप कि हाँ ये मैंने मॉडर्न बिल्डिंग की, ये फ़ायदा है, ये हेरिटेज बिल्डिंग में ये स्कोप नहीं मिलता. नाउ वी आर इनटू 2026. मटीरियल जब हेरिटेज बिल्डिंग्स बनते थे तो हम वर्नाकुलर आर्किटेक्चर्स लेते थे, और कुछ जगह को तो मुझे ऐसे पता है कि चलो आज इस गांव में सूखा पड़ गया, तो राजा ने सोचा कि हम क्या करें. तो राजा ने कहा कि चलो हम अपने गांव वालों को काम देने के लिए ना एक महल बनवा देते हैं, और उसने 4 साल तक महल बनवा दिया जो हेरिटेज बिल्डिंग बन गई. बस आज भगवान की दया से सूखा नहीं पड़ता, कोई मेरे पास राजा नहीं है जो मुझसे बोले कि चलो मैं महल बनवा देता हूँ, आप अपने मजदूरों को काम दे दो. सो इट इज़ डिफरेंट. ठीक है, मैं अभी जो बिल्डिंग्स कर रहा हूँ या इस तरह कर रहा हूँ, मुझे एज सच इट इज़ नॉट माई कोर आर्किटेक्चर. माई कोर आर्किटेक्चर इज़ मॉडर्न कंटेम्प्रेरी एंड आई लाइक इट. तो मैंने अभी ऐसा कोई इनिशिएटिव या ऐसी कोई चीज़ें अभी नहीं की हैं या ऐसा डिज़ाइन नहीं किया है जिसमें मैं करूँ. तो मैं प्रॉज एंड कॉन्स बताने वाली बात सिर्फ एक चीज़ की है कि आज मॉडर्न चीज़ों के अकॉर्डिंग हम जितने हमारे क्लाइंट्स हैं, बेसिकली हम अपने क्लाइंट्स के लिए बनाते हैं, उनको सारा मॉडर्न चीज़ों के थ्रू यूज हो गए हैं. अभी मैं अगर किसी से बोलूँ कि मेक अ 3 feet walls इन योर हाउस और आप यू डोंट यूज एयर कंडीशनिंग इन योर हाउस, तो शायद वो मुझे प्रोजेक्ट में नहीं करेगा. दिस इज ट्रूथ. सो ये कहना कि ट्रूथ यस प्लीज नहीं सर. सॉरी, आपसे आपको देखा था पहली बार मुलाकात हो नहीं बड़ी. मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो आपको सेटिस्फाई करती है, जो बनारस में आपने बनाया और आपने अच्छा बनाया. ऐसी कौन सी बिल्डिंग है जो आपका प्रोजेक्ट आपका जो मुझे ऐसा है जो लगा कि आपने अच्छे से प्रिजर्व किया, या बनारस के एज ए आर्किटेक्ट आपने अच्छा काम किया वो बनारस के. सर मैंने प्रिजर्व तो अभी तक कोई बिल्डिंग नहीं की है. जो बिल्डिंग बनाई कि नहीं बनाई है. हाँ, तो कौन सी प्रिजर्व मैंने ये एक छोटी सी बिल्डिंग की थी. अभी वो एक बुटीक होटल के नाम से चलता है, स्वर्ग क्रिसेंट विला. इट इज़ वहाँ पे रविंद्रपुरी कॉलोनी में है. वो एक 60 साल पुरानी बिल्डिंग थी और हम लोगों ने उसमें कोई भी वॉल्स नहीं हटाई थी, और हम लोग ने वही 5 मीटर हाइट के साथ हर एक कमरे को रेनोवेट किया था. हेरिटेज में जैसे घाटों के परिक्षेत्र में या इस तरह पर आपने कोई ऐसा बिल्डिंग ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया? नहीं, मैंने किया है सर, बट आई एम अ पार्ट ऑफ द थिंग्स. द ताज अवंतिका, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. द पेन आर्किटेक्ट इज डिजाइनर ग्रुप मुंबई, सो इट इज़ नॉट माई पार्ट, इट इज़ जस्ट आई एम एसोसिएटेड विद दैट. मेरा एक सवाल सभी आर्किटेक्ट से, जैन साहब से भी है, आपसे भी था कि जैसे ये तो आगे की बात है कि आपको दरभंगा पैलेस मिला और आपने किया, कोई बिल्डिंग मिली जैसे हाल में एक 5 स्टार होटल ताज का ही शायद इसमें बनती है इत्तेफाक से आप उसमें रहे एसोसिएट. मेरा सवाल था, जब देखा तो मैंने देखा कि ये बड़े आसानी से हेरिटेज में कन्वर्ट हो सकता था. जो हमारी शैली उसमें उसको नहीं बनाया गया, तो आपको नहीं लगता कि उसमें वो चीज़ क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हमारा ही एक तरह से फायदा हो गया? नहीं सर, अगर आप उसकी 60 साल पुरानी फोटोग्राफ देखेंगे तो बिल्डिंग ऐसी ही बनी थी. उन्होंने यूज़ नहीं किया था. वो एक हॉस्पिटल था, रामघाट हॉस्पिटल था, और उन्होंने कोई भी स्टोन यूज़ नहीं किया था, नॉर्मल प्लास्टर यूज़ किया था. उसकी सबसे खूबसूरत बात उसकी एक छत थी. ठीक है, मैं समझ गया. ठीक है, उसको देख रहे हैं वो पुराना है, नहीं सॉरी, एक
जरा सबका हो गया क्वेश्चन हाँ, तो सर एक चीज़ हम ऐड ऑन करना चाहते हैं क्योंकि हमें पता है, बाकी लोग को मुझे नहीं पता है कि नहीं। सर ने जैसे बात किया था कि हमारे पास 80 घाट है, तो पहली बात कि 80 नहीं 84 घाट्स है, और नाम रिवाइज हो गए 88 घाट्स हो गए। और जो चीज़ सर ने कहा कि वाराणसी का खुद का एक आर्किटेक्चर नहीं है, तो इसका मेन रीज़न ये है कि वहाँ पर जो घाट्स थे वो एक राजा ने लिया, और वो कभी एमपी के राजा थे, कभी महाराष्ट्र के थे, कभी बिहार के थे, तो वो लोग अपने यहाँ से वर्कर्स बुलाते थे क्योंकि उनको अपने यहाँ का जो प्रजा थी उसको काम दे रहा था, और यहाँ आके अपना महल खड़ा करवाते थे। और जो बनारस के लोग फिर अपना घर बनाने लगे तो वो उसी से इंस्पायर होते थे और कहते थे देखो ये घाट पे ये भोसले घाट है, इनके यहाँ पर ये वाला एलिमेंट है, वो मेरे घर में बना दो। तो ये भी रीज़न है कि बनारस अपना इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हर घाट पे अलग अलग शैली, अलग अलग जगह का आर्किटेक्चर था, और लोग उसी से इंस्पायर होकर अपना घर बनाने लगे। तो ये चीज़ हमें नहीं पता कि यहाँ का मेन क्या था आर्किटेक्चर, बट हर जगह से इंस्पायर होकर यहाँ हर जगह आपको घर मिल जाएगा, ये पक्की बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा सर आपसे ही है, आर्टिस्ट अरुण सिंह सर। तो हम लोग को पता है कि चौक एरिया में हम लोग को बहुत सारी ग्राफिटी और म्यूरल्स मिलते हैं, तो उनके पीछे सर का ही हाथ है। सो फ्रॉम एन आर्टिस्ट पर्सपेक्टिव, how do you see the city differently from architects and developers? What do you think they are getting right and what are they missing entirely? क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हैं, हम आर्किटेक्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर एक डेवलपर या एक आर्किटेक्ट लैक कर रहा है, और एक आर्टिस्ट आप उस चीज़ों को देख पा रहे हैं, और क्योंकि आपके पास प्रोजेक्ट्स भी आए हैं तो आपने उसे सही भी किया है। थैंक यू। पहले तो मैं आपका हेल्थ तो देखिए, मैं 2004 से यहाँ काम कर रहा हूँ, और मैंने जो बात समझी वो ये कि हमारा जो शहर है ना, हम लोग की कल्पनाओं से ज़्यादा इसके पास विस्तार रहा है। जैसे 2 लाइन्स हम लोग यूज़ करते हैं, गोल्डन लाइन्स हैं कि ओल्डेस्ट लिविंग सिटी, और एक लाइन हम लोग यूज़ करते हैं बाबा की नगरी। ये दोनों में ही भयंकर विरोधाभास है। बाबा की नगरी अगर कहते हैं तो विश्वनाथ जी से जुड़ जाता है, और जब ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहते हैं तो इसकी हिस्ट्री चली जाती है 3500 साल पुरानी। अगर बाबा की नगरी कहते हैं तो 1500 साल पहले हम मूर्ति पूजक हुए, जैसे उसके पहले नहीं थे। अब बात आता है कि हम असल में अगर ओल्डेस्ट लिविंग सिटी हैं तो क्या है, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूं कि विश्वनाथ जी कोई दर्शन करने जा रहा है पूरे ट्रेडिशन के साथ, तो क्या वो ओल्डेस्ट सिटी का पार्ट है? क्या आप कह सकते हैं? नहीं है, क्योंकि आप वो खास नहीं है, क्योंकि दुनिया में 1500 साल पहले पूरा पूर्वी एशिया, इराक, ईरान, सीरिया सब एक्टिव थे इसी मोड में, जिस मोड में हमने मूर्ति पूजा शुरू किया। इसकी मेन ग्रेविटी 3500 साल पुरानी है। और 3500 साल पुराना क्या है? यहीं से हमारी प्रॉब्लम शुरू होती है। 3500 साल पहले हम आर्किटेक्चर तो थे ही नहीं, हमारा सब कुछ ट्रेडिशन में था, और यहीं से हमारी प्रॉब्लम ये शुरू होती है कि ये शहर ऐसा है जहाँ सबसे पहले ये सोचना है कि हमें क्या नहीं करना है, और ये इसी में इसकी सारी चीज़ें प्रॉब्लम में है। और मैं ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं भी, और मैंने अपने अलावा भी किसी को नहीं देखा कि कोई शहर को प्रिजर्व कर पाए या करने की ओर बढ़ा है। मेरा पहला ही प्रोजेक्ट, जैसे आपने म्यूरल की बात की, मैंने बहुत दिल से किया था। 2004 में एक जायका एजेंसी आई थी, उसने मनकेटका घाट पे क्या, उसके लिए मैंने जैसे रात दिन करीब 10 दिन तक ड्राइंग बनाए थे, और 2 बहुत फेमस स्कल्पटर हैं, उनके बियॉन्ड जाके मुझे वो प्रोजेक्ट मिला। वो प्रोजेक्ट करने की 1 साल बाद मैं सोचा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था तब, क्योंकि वो मैंने पूरा वर्क अपने स्टाइल पे किया, मेरा अपना क्यूबिक फॉन्ट था, और 1 साल बाद मुझे समझ में आया कि मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे ट्रेडिशनल आर्टिस्टों को बोलना चाहिए था कि आप लोग करो। तो बात यही आई कि मुझे क्या नहीं करना था, मैंने ये निर्णय करने में बहुत देरी की, और मोस्टली लोग यही करते हैं, क्योंकि इस शहर में क्या नहीं करना है इस पे ही सब कुछ डैमेज हो रहा है। जैसे अब आप कहें कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे हम अगर एज आर्टिस्ट देखते हैं कितना ग्रेट है हमारा शहर, कि अगर सारनाथ के कैंपस को आप देखेंगे तो आपके पास विश्व धरोहर एक है, उसे जनरेट नहीं कर पा रहे।
वो जब खुदाई में मिला था उसकी तस्वीरें आप जब उठाएंगे, सारनाथ परिसर में आप धमेक के सामने दिखाएंगे, आपको एक डेड कैंपस दिखाई देता है। आपको एक ऐसा कैंपस दिखाई देगा कि ये कैसे जैसे धरोहर हो सकता है, जबकि वो है कैसे है। धमेक स्तूप बस आपको दिखाई देता है, आपको वो पिलर नहीं दिखाई देता है जो अशोक ने अपने मेन डायनेस्टी में बनाया, यानी जो अशोक का सिंबल है, उसका रूट पार्ट है, उससे टूटे हुए टुकड़े वहाँ हैं, और वो जो लाइन कैपिटल है वो म्यूजियम में रखा है। उसे रीस्टैब्लिश वहाँ किया जा सकता है, उसके सारे आर्कियोलॉजिकल वैल्यूज़ हैं। अब आप कल्पना करिए कि उसे भी आपने रीस्टैब्लिश कर दिया, फिर वहीं पर थोड़ी दूर पे धर्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा की प्रतिमा मिली जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, जो सबसे ज़्यादा उसका वो है, पूरे पूर्वी एशिया में उसका ग्लो है। इसको वहाँ पे वापस रिस्टैब्लिश किया जा सकता है, और धमेक स्तूप पे जो पार्ट्स मिले उन्हें भी वापस मूर्तियाँ वहाँ रखी जा सकती थी। अगर आप इसको रिलीज कर देते हैं तो पाते हैं कैंपस एक लाइव कैंपस मिलता है, और ऐसे कई कैंपस बांग्लादेश में भी है, उन्होंने किया, उनका विश्व धरोहर हो गया। नालंदा में भी हुआ, विश्व धरोहर हो गया, लेकिन हम उसे नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल ये आर्किटेक्ट की बात नहीं है, ये गवर्नमेंट की बात है। हमें एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें गवर्नमेंट से बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जो भी कुछ करना है अपने दम पे करना है। अब हम आपके ले चलते हैं रामनगर। रामनगर फोर्ट के पास में आप देखेंगे एक गेट बना हुआ है ब्लैक कलर का। अब मेरा कहना है कि चलिए गवर्नमेंट को ये कहना था कि रामनगर फोर्ट एक तरह से आर्कियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, वो नहीं मान रहा, उसके राज परिवार से कॉन्फ्लिक्ट है, गवर्नमेंट ने नहीं माना। लेकिन हमें तो इनिशियल लेना चाहिए कि वो एक आर्कियोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, उसके पास जो डिज़ाइन करना है बड़ा आसान था कि उससे जो पैटर्न थे उसे हम उसमें अप्लाई कर देते हैं। ये आर्किटेक्ट्स नहीं करना है। ऐसे हम बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं जो हम सही से कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया, जबकि वहीं शास्त्री जी का जन्म स्थान है जिसके कारण उसको बनाया गया, उनसे भी कैरेक्टर मैच नहीं कर पाया। तो मेरा ये कहना है कि हमें कुछ जगहों पर रुक के सोचना होगा, जैसे कि इस शहर का जो मेन कॉन्सेप्ट है बहुत दूर है, हम उससे कुछ टच नहीं कर पा रहे हैं, गवर्नमेंट हमारी बहुत मदद करने वाली नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा उदाहरण मैं चलते चलते और दे दूं कि बिहार में एक बहुत अच्छा एक प्रोजेक्ट आया जिसमें रोड वाइडिंग हुआ, पूरे शहर की रोड वाइडिंग हुई। उसमें जो पुराने मंदिर थे सारे बनाए गए फिर से। ये हमारे लिए बहुत अच्छा अवसर था कि उन मंदिरों को, जैसे कपूर ने जिक्र किया कि हमारे यहाँ बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर हैं, ये सबसे अच्छा पार्ट इन्होंने उठाया कि हम अलग अलग शैली में उन मंदिरों को बना सकते थे, लेकिन उसको इतने रूडली बनाया गया है कि वो अभी से टूटने शुरू हो गए, उनकी कोई शैली वैली नहीं है। तो चीज़ों को हम एक एक करके मिस करते जा रहे हैं। यही पे हमारा वो है कि हमें देखना चाहिए। ओके सर, तो हमें लगता है जो ये पॉइंट है कि बनारस का खुद का भी एक जो आर्किटेक्चर शायद हम लोग अवेयर नहीं है या तो हमें पता नहीं है, वो भी एक हमें लगता है ये पॉइंट है जो लैक कर रहा है कि हमें डिज़ाइन नहीं कर पा रहे हैं, हम या तो इंस्पायर हो फिर किसी और चीज़ से। सो थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट वी हैव आर्किटेक्ट सुवर्णा अग्रवाल मैम। और जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारी बात कर ली है एज अ डिज़ाइनर कि क्या बनाना चाहिए क्या बनाना चाहिए, बट ये तो बहुत माइनर लोग हैं डिज़ाइन करने वाले, मेजर तो वो हैं जो इसे देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या बनवा रहे हैं। तो मैम ने अपना मास्टर्स किया है आउट ऑफ इंडिया, तो इनको ज़्यादा हमें लगता है इन्होंने एक्सप्लोर भी किया है, एज ए बाहर उन्होंने मास्टर्स भी किया है और भी कोर्सेज किए हैं। तो एज ए यूज़र मैम से हम ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, इफ हेरिटेज एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर वर टू गेस्ट्स staying in the same hotel in Banaras, would they coexist comfortably or would there be conflict? मतलब दो गेस्ट हैं और आपके जो हेरिटेज बिल्डिंग है और मॉडर्न बिल्डिंग है, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या आएगा जब आप उसे एक्सपीरियंस करेंगे पर्सनली। सो दिस क्वेश्चन इज नॉट एज अ डिजाइनर आर्किटेक्ट मैम, दिस क्वेश्चन इज एज अ टूरिस्ट कि वो कैसा कंज्यूम कर रहे हैं। Thank you, Paisani. So basically what happened is conflict and the other word you said is coexistence. So conflict is something that arises in the mind. It is not something that is existing as a physical thing, it's a subjective thing. So conflict तब आता है जब किसी भी चीज़ को अगर heritage and modern है, and if we are not designing it, I mean I'm talking about वो architect तो inbuilt है अंदर, तो it will come out, the opinion of it will come out कि जब कोई चीज़ एक
जैसे बनारस का हम एग्जांपल दें, जैसे अभी वी वर डिस्कसिंग अबाउट अवंतिका द ताज होटल. सो इफ यू हैव सीन, वो एक पूरा ब्लेंड हो जाता है. इट इज़ नॉट स्टैंडिंग आउट इन एनी वे कि एक it is blending with the color palette of the ghats. It is not standing out as a very modern building, but it is, since it's a 5-star luxury hotel, it has all the amenities that a person in a modern day would want and expect from a 5-star luxury project. So as a user point of view, users are living in the current age and world. जो ट्रैवल कर रहा है वो कितनी कंट्रीज ट्रैवल कर रहा है, यू कैन नॉट लुक एट अ पर्सन एंड जज कि उसने कितना ट्रैवल किया है, हाउ वेल एस्टैब्लिश्ड दे कुड बी. सो मॉडर्निज्म को हमें साथ में लेके चलना होगा. बट इफ वी टेक बनारस एज एन एग्जाम्पल, सो people are coming here for the heritage, so that essence will always be there looking at the buildings. But जो हमें modern amenity है, that is something that is on the architect, on the designers of the city. So like even me, I design a lot of modern buildings, but मैंने as an intern I have worked on this house which is महमूदाबाद house लखनऊ में. It was a 300-year-old house of महमूदाबाद के राजा का वो घर था, and built up area was 1 acre of that house with 5 courtyards. So even they are trying to analyze the entire project, convert it into a 5-star luxury. So all these properties, the heritage properties, are getting converted into hotels, keeping in mind the modern day and era, because वो 300-year-old legacy है, उसकी वो memory है, but it has to go on for the next upcoming generations. So I think in that way, the modern and the heritage has to coexist, and it should not be a conflict, and it is on us how we are designing and taking it forward with the material, the mindset and everything. थैंक यू सो मच मैम. मुझे लगता है सबसे कम टाइम में सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने ही दिया है. नेक्स्ट वी हैव आर्किटेक्ट कृष्णा सर. So he has done masters and also PhD, and right now we have a question, very different question from you sir. Is there a building in Banaras that you believe successfully brings together old and new, and what makes it work? तो ये जो होता है, ये पूरे पैनल का ये एक कंक्लूजन आप दे सकते हैं, बट इस कंक्लूजन के बाद और भी हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप थोड़ा इसको प्रिसाइज रखिएगा क्योंकि हमें अल्टीमेटम आ चुका है. Yes, yes. Thank you so much for this opportunity. Like the way you said, there is, and we know from the panel here, they have worked so very well into heritage structures and the Structure Heritage Initiative. I, being a conservation architect, have practiced, done some projects here on ghats, on palaces. I very strongly and observe the town from my master's perspective, from my PhD research perspective. I very strongly believe there is no one building or one example of perfect building of this holistic coexistence of new and old, specifically in Banaras. All structures in the heritage core of Varanasi, along the heritage dense properties, all are the examples of this coexistence of new and old and modern and tradition all together in one structures. Because these are all the streets which organically planned. They are not unplanned, sir. They were organically planned. They planned with the kind of technology, the kind of awareness of the geography, their sacred interpretation of the sacred landscape, which is very well documented in the traditional literatures, Puran and Quranic literatures, in Tirth Mahatmya. So it was all Tirth-centric perspective, which was building the urban construct of the town, and that is how the whole heritage core of the city was planned. It was organically growing, it was organically planning, and that was one of the reasons. And being in that dense city, that dense core is so very much untouched from very early centuries. Like you go to archaeological description, you see when archaeology is describing about the urban construct of town, and when the early travelers of Yun Sang and such early travelers were giving description of the early core settlement of the town, they were giving exactly the same kind of narration which we get to see in present day context. So the whole core is to reuse the material into their same construction as per the availability of the technology that they have in that time of the time. And that is the kind of challenge that we have in terms of making interpretation or making any interpretation in this heritage core. Where I happen to get a chance to work on the Balaji Ghat Palace, which is done by Scindia, which is presented at the Balaji Ghat
next to the Mangala Gauri temple, and I also get a chance to work on the heritage restoration of this Ganga Mahal Palace, which is next to it. And these are the core heritage conservation project initiative funded by World Monument Fund, and we definitely reached to UNESCO for World Heritage nomination, and there is a lot of politics that we reach. So in that such the same projects, after doing heritage structural restoration, you do all that structure, you do all that challenges of the including of services into that structure. Then there comes of the challenge how to give life to that structure. Cause the city, as ma'am said, the tourism, why is this tourism coming to Kashi? They are all well-traveled people and they're traveling all the way, and half of the population is, it's not just spirituality and religion that is bringing people to the town. It is basically the experience of Kashi that is bringing people from way different part to get to the town, and this thing is so very much beautiful that this experience of Kashi, living in Kashi, the Kashi Vas karne wali baat, which is bringing tourism, which is bringing all heritage, and which is all the main reason for the biological urban growth of the town, is very much narrated and very well documented in Skand Puran of Kashi Khand, Kashi Khand of Skand Puran, which talk in detail about this urban construct as Kashi Yog. And they are saying कि काशी में प्रवास करना है या वास करना है, दोनों के सेम तरह के फल हैं और उसी के बेसिस, and this is the main motive which was further get resulted into the kind of architecture that we get to see, which is very much being documented, the whole facade by the architect students of all batch, हर college में bachelor's की thesis में भी expect at least 5 thesis तो होंगे जो कि काशी के बारे में हो रहे होंगे. So कोई एक स्पेसिफिक बिल्डिंग नहीं है, बट ये होल कोर, जिसको हम कोर पक्का महल या जिसको अगर जाके कभी ऑब्जर्व करेंगे तो वी विल गेट टू सी कि these buildings are the best building or best examples of this coexistence of traditional and modern all together. And being as an architect, I believe, heritage restoration is like a responsibility to us. We belong to the town, we must, should have that kind of, these are treasures to us and we must cherish it likewise. There was earlier heritage, heritage की definition खतरे में है. Earlier heritage क्या था कि एक generation दूसरे generation को जो pass कर रही है, that was heritage. Later when Angrez came, they said कि anything which has 150 years of age, will call it heritage. Now we are in a state where we are seeing any sandstone facade carved, it's called as heritage. And heritage is, the whole definition of heritage is in danger, and that is why I am very appreciating this kind of panel where we are discussing heritage. And being discussing this in architecture forum, sitting at Varanasi, the more challenge that we have to discuss, not just the Taj project, we have to discuss Manikarnika also. In such heritage core, a bus stand kind of architecture is intervening, and we must should trigger the points, right? Thank you so much for the question. The discussion you are saying and the points are very vast, sir. So, and we have a limited time. So, my next question again to Dheeraj sir, that as we all know, आप बहुत ज़्यादा play करते हैं materials के साथ, हमने देखा भी आपके buildings में. So, what is the most compelling or beautiful building material you have encountered in Banaras, and what makes it significant? Again, honestly, I'm doing most of the modern project, but again, two material of Varanasi. Two material of Varanasi is always fascinating me. One is our Chunara stone, and second is a lime plaster. And now we are using a lime paint, a lime wash paint. It is more expensive than lime plaster, but definitely it is a modern thing, and I'm using it. The two most important material is the limestone and the lime. That's the two things what I'm liking the most in materials. Okay, so you can say this is a vernacular material क्योंकि हमें easily available भी है यहाँ पर. हाँ, definitely. Okay, so next question from RC Jain sir. That क्योंकि सर आप में लगता है सबसे ज़्यादा फैमिली वाले बोलने वाले भी आप ही हैं और फैमिली के साथ रहते भी हैं, इसीलिए मैंने एक फैमिली वाला क्वेश्चन ही आपके लिए फ्रेम किया है. That consider a family living in the old city, 3 generations in a haveli, without the resources to restore it, but unwilling to sell. What would you advise them to do? क्योंकि वहाँ 3 पुश्ते रह रही हैं और कोई ऑब्वियस सी बात है 3 पुश्ते घर में रह रही है तो उस घर में नहीं तो भी वो 80 साल तो हो ही चुके होंगे उस घर को, और मगर वो घर का जो स्थिति है वो भी जर्जर है. तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए उस फेज में? क्या वो बेचना पड़ेगा और रीस्टोर करने का पैसा नहीं है, तो फिर क्या एक पॉइंट है जो आपके हिसाब से
एज एन आर्किटेक्ट हमें करना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये तो बनारस में बहुत सी बिल्डिंगों के साथ में आ रहा है कि पैसा नहीं है, परिवार रह रहा है। अब उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो होगी वो डिसाइड करेगी। अगर अब क्या हो गया कि आजकल बहुत से ऐसे बिल्डर्स भी हैं जो उनके साथ में हेरिटेज हॉस्पिटैलिटी की जो बात आपने लिखी थी, वो जा रहे हैं कि भाई आप हमें ये हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में मैं आज होटल बनाऊंगा, बुटीक होटल्स, एंड दे आर रेडी टू पे हैंडसम अमाउंट, एंड वो बाहर जाकर के फ्लैट ले रहे हैं। ऐसा हो भी इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट इज़ हैपनिंग। एंड मेरा एक सपना था जब मैं विश्राम मंदिर बना रहा था, सच्ची बात तो यही है कि ये पूरा पक्का महल क्षेत्र जो है वेनिस की तरह एक दिन गलियों में पूरा टूरिज्म हो जाएगा, और हम अपने शहर के लोगों को जो ऊब से गए हैं गलियों में रहते रहते, जिसमें गर्म हवाएं, क्योंकि वहाँ एयर कंडीशनिंग वगैरह का भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो लोग फिर बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें बननी शुरू हो गई। तो मेरा एक सपना दिखता है कि कुछ समय बाद, ज़्यादा दिन नहीं लगने वाला है, 10 वर्षों में तो आपको दिखाई देगा कि गलियों में पूरा हेरिटेज में टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी जो है आपको नज़र आएगी। तो वो जो आपने प्रश्न किया वो वहाँ से निकलेंगे और वहाँ पर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी आनी है हेरिटेज। दिस इज हाउ आई लुक एट इट। ओके, थैंक यू सर। तो इसी क्वेश्चन से हमें लगता है रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योंकि हम अपने शहर को क्योंकि नो ऑफेंस, क्योंकि मैं खुद एक बीजेपी सपोर्टर हूँ और खुद मिल भी चुकी हूँ पीएम मोदी सर से, बट उनका जो एक सपना है कि हमारा जो बनारस है वो बाहर की सिटी से इंस्पायर होकर रीडिज़ाइन हो। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन सर आपसे है कि अ प्रोएक्टिव क्लेम दैट वी हैव, कंटेम्प्रेरी आर्किटेक्चर इन बनारस often imitates Western models, while heritage architecture is increasingly reduced to a visual backdrop for tourism and social media. Do you agree or disagree, and why? Actually, larger part of the statement is true, because what we find the influence of West in the heritage culture, it's not like that we are not making a modern design here, but when we are designing, so influence of West in terms of material. When we walk into the streets of the Banaras, we see the use of the large glass facade, climate insensitive material. So this type of use of material, this type of architecture should be avoided. I'm not criticizing the West architecture in the West, because they have also deep context, and the contextual part of this design is missing actually. We use the material influencing from the West without knowing its properties, character. So that's why we have to, like, on the heritage side, it has just become a backdrop, just like you can say social media influencer, like the branding. So people are using it, but they are not living it. It is a kind of experience that we should experience it. We should live it. The design should evolve. It's not like that it should be influenced. We should use it just for the aesthetics without understanding its character. So it's like we have to see how the building should be acting in the future, how it will come after, like, over years and years. Because in the heritage architecture, when we are using this material, this type of material ages with grace. And while using the contemporary material, many of the contemporary material which we are using as a replacement, they deteriorate by the time, and they don't have like a much life as compared to these material which are used in the heritage. So that's what I have to say. Thank you so much, and it's all about the questions. I want to add one thing. Give me 2 more minutes, Komal. So अभी जैसे हमारे पैनल में बहुत लिमिटेड थे कि सिर्फ 6 मेंबर्स ही हो सकते हैं, बट मेरा सजेशन और भी लोग के लिए था, क्योंकि हमें पता है कि वो लोग हेरिटेज बिल्डिंग्स पे काम कर रहे हैं। तो हमारे ऑडियंस में हमारे जो सारे फेलो आर्किटेक्ट्स हैं उन लोगों ने काम किया है। सो आई रियली वॉन्ट यू टू प्लीज कम अप विद 1 or 2 पॉइंट्स जो कि आप लोगों ने ये प्रिजर्व करने का काम किया और आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट सर, मैम, आप लोग प्लीज़ अपने कुछ पॉइंट्स ऐड करिए कि आप लोगों ने ये प्रोजेक्ट ऐसा किया, प्रिजर्व किया, और ये पॉइंट है जो हम लोग को सीखना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर नहीं पता कौन किसको आ जाए कोई प्रोजेक्ट, और प्रिजर्व करने के लिए ये पॉइंट अच्छा है, एक हेरिटेज बिल्डिंग को रीस्टोर करने के लिए। मैम, भारती मैम। I'm interrupting. Before we go further, I would like to ask, this is the time when we have to incorporate a heritage conservation architect into the project, because they know the sensitivity of the dealing with heritage
I mean, material, dealing with how to prepare lime plaster. I mean, they are I mean, that is where we need expertise to get part of the we project. need an expert to guide us that how can we execute. Exactly. That makes the whole project challenge. So in audience, any fellow architects who can add any point, क्योंकि panel member में हम नाम नहीं लेना चाहते. अनुभव sir, if you want to add, yes. Sorry, Chalna sir. If you want to add any point on this. Regarding the heritage, just sharing an experience. 10 years back, I was in Delhi with Aga Trust for Culture, and we were doing a restoration documentation of Humayun's tomb and the Aga Khan's tomb. So I was given to restore a wall which was around 600 years old. It was a tiled wall. So we documented it, I sketched it, I was tracing it. Now there was no AutoCAD, and it was all compass and geometries. Now we see just sharing an experience over that. When we see a pattern made, like I can see a pattern over there, we see the module that it's repeating. And the module can be anything, like it can be a flower, it can be anything. So I learned that how did they make the patterns? It was not like repeating the patterns, it was like intersection of so many lines. So dividing the space into lines and trying to get too many patterns out of, like you can get 100 patterns out of from that one canvas. So that was kind of restoration we were doing, and also a decision of, like we were making in a stone jali over there. We have a CNC machine nowadays, but it was all chosen that we would need handicraft people. We would train them how to use the chisel and make a jali out of a stone, where every flower is different from the other flower. That's how the heritage came to me. Thank you. Very well pointed. You know the intricate details of the jalis and beautiful pattern. Where are they coming from? They are the interpretation of their spirituality into materiality, and that is why heritage is something that we are preserving, and we are so much valuing it, because it is every small square inch is translation of their spirituality into materiality. अगर हम टेम्पल आर्किटेक्चर देख रहे हैं, each motif, अगर कहीं पे कमल का दल लगाया है या कहीं पे गजप्रस्थ बनाया है, तो there is all reason to put it, and that reason adds a lot of value into how that will take its shape, which art we have to take to make that, because there is no art out there by the time, they are doing it with their spiritual understanding. So that's why these heritage structures are so much of their value, not just because of the carving, not just because of the material, not just because of their material construction technology. It is also because of the kind of translation they are doing. They are translating their spirituality into material thing, and that is why they are so very much important and must be valued so very much. Thank you so much for sharing this. Thank you so much sir. And I guess ये जो पूरा हमारा डिस्कशन था, ये एक एजुकेशन नहीं, एक अवेयरनेस की तरह अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छा रहेगा, और हम लोग आगे इस चीज़ को प्रमोट करें, क्योंकि एज अ रेसिडेंट ही हमें प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बाहर से आके तो कोई ऑब्वियसली हमारे शहर को बचाने की कोशिश तो नहीं करने वाला. So thank you so much for the audience and the panelists to have it, and hand over to Komal. Thanks.